Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study technological inventions in the field of immunology. So let's start the lecture and understand. See, at first we will understand what is immunology. See, immunology is the branch of medicine and biology that covers the study of immune system, right? So to understand immunology, we need to understand what is immune system, right? Also, what is immunity, right? What is immunity? So in this lecture we will study firstly what is immunology, then immune system, then immunity and different types of immunity, because 3 marker or 5 marker question may be asked from immunity. After that we will study the technological inventions in the field of immunology. See, there are various diseases in the present time, and for that many drugs and many vaccines have been manufactured. एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस में जो इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या हो जाएंगी, वैक्सीन हो जाएंगी, राइट? एंड बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक vaccine and the vaccine manufacturing process has been in the news for a long time. Therefore यहाँ से भी जो वैक्सीन का टॉपिक है यहाँ से भी 3 marker, 5 marker and 11 marker question may be asked in the examination. For an example, what is vaccine, what is the vaccine manufacturing process and what are the different vaccines for different diseases at present, right? And after that ये जो है टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा. सो इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, देन we will study about immune system, then immunity, different types of immunity, then technological inventions in the field of immunology, and after that we will study what is vaccine, what is vaccine manufacturing process, and what are the different vaccines for different diseases, right? So let's start the lecture with immunology. See, immunology is the branch of biology or medicine that covers the study of immune system in all organism, right? तो हमारी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म में जो इम्यून सिस्टम है, राइट, उसको अध्ययन करने वाली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसी को ही क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, राइट? सो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और मेडिसिन that covers the study of immune system in all organism, right? In other words, we can say that immunology charts, right, measures and contextualizes the physiological functioning of immune system in both, right, health and diseases, right? तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हेल्थी होता है तो इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डिसीज जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब कोई डिसीज होती है तो उस समय पे किस तरीके से इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है, तो उसके लिए जो इम्यूनोलॉजी है वो मेजर्स है या कंस्ट्रक्चुलाइजेस जो है करता है. तो इस तरीके से हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी चार्ट्स, मेजर्स एंड contextualizes the physiological functioning of immune system in both health and diseases, right? फर्दर इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए बेटर है कि हम इम्यून सिस्टम को समझें, राइट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्यून सिस्टम, राइट? सी, द सिस्टम ऑफ बॉडी विच इंक्लूड्स सम सेल्स, राइट? हमारी बॉडी की कुछ सेल्स हैं, कुछ टिश्यूज हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, राइट? और कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि फ्लूइड्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे? हार्मफुल जर्म से या पैथोजन से, राइट? तो प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम जर्म्स, राइट, या पैथोजन्स, और पैथोजन्स में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, राइट, वायरस हैं, राइट, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, राइट, एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स. और उसी सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है, राइट? तो सिंपली 3 मार्कर जो है डेफिनेशन हम यहाँ पर दे सकते हैं, द सिस्टम ऑफ बॉडी, right? The system of body which includes some cells, right? The system of body which includes some cells, tissues, glands and fluids
to protect the body from germs, bacteria, viruses and other external factors or pathogens is called as immune system. Right? अब immune system के बारे में हम समझ चुके हैं. Now we will understand about immunity. तो देखिए इम्यूनिटी क्या होती है. इम्यूनिटी एक बायोलॉजिकल क्या होती है, प्रोसेस होती है. कैसी होती है? देखिए जैसे ही कोई फॉरेन पैथोजन, राइट, पैथोजन, राइट, कोई पैथोजन या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हो सकता है वो पैथोजन हमारी बॉडी को नेगेटिव हार्म करे. इसलिए हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, राइट, और ऐसी इम्यून सिस्टम में सेल्स भी आती हैं, टिश्यूज भी आते हैं, ये उस पैथोजन को हमारी बॉडी से बाहर करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, राइट, और इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको ही क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है. राइट, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है. दैट इज द स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिसीज रेजिस्टेंस, राइट, टू इन्फेक्शन, डिसीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेडर्स. राइट, तो सीधी हम कह सकते हैं कि जब कोई बायोलॉजिकल इन्वेडर्स या कोई फॉरेन पैथोजेंस जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वह प्रक्रिया जिससे उस इन्फेक्शन या उस पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है. राइट, तो इसको भी 3 मार्कर के लिए या फिर आप किसी भी क्वेश्चन में जो है इंट्रोडक्शन के लिए ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं. राइट, इम्यूनिटी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज द स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिसीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, डिसीज और other unwanted biological invaders. Right, or in other words we can say that immunity is a system that protects the body, right, and provides the power to fight क्या हो जाएगा, disease हो जाएगा. Right, so in this way we have understood what is immune system and what is immunity. Right, इम्यूनिटी को हम अदर वर्ड्स में भी जो है डिफाइन कर सकते हैं. इम्यूनिटी रिफर्स टू द बॉडीज ओवरऑल एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग डिसीज है या फिर कोई कॉजिंग क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या पैथोजन हो सकता है. तो इम्यूनिटी को बॉडी की जो ओवरऑल एबिलिटी है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इम्यूनिटी रिफर्स टू द बॉडीज overall ability to protect itself against external factors or external pathogens. Right, जो immunity है broadly can be divided in 2 category. First is innate immunity, then क्या हो जाएगा, adaptive immunity हो जाएगा. Right, जो innate immunity है इसको 2 अदर नाम से भी जाना जाता है. Right, innate immunity is known, इनेट इम्यूनिटी को ही नेचुरल इम्यूनिटी या फिर इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है. तो इनेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी या फिर क्या हो जाएगी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. वहीं जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है इसको ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है. राइट, तो अगर एग्जाम्स में पूछा जाए 3 मार्कर में व्हाट इज इम्यूनिटी, सो वी कैन डिफाइन इन दीज वर्ड्स. राइट, अगर ये 5 मार्कर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इम्यूनिटी इज डिफाइंड, इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी इज ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप. क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनेट इम्यूनिटी हो जाएगा और एडाप्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा. अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है उसको हम समझते हैं. देखिए, इनेट इम्यूनिटी इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट क्या हो जाएगा, पैथोजन हो जाएगा. तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम पाया जाता है और जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो कि नेचुरली हमारे शरीर में क्या होता है, अवेलेबल होता है. राइट, जैसे कुछ सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, राइट, कुछ फ्लड्स होता है जो कि उस पैथोजन से फाइट करता है और उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है कोशिश करता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. राइट, और ये जो जनरली है ये क्या होती है, ये जनरल होती है, मतलब लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का इम्यून सिस्टम पाया जाता है. इसीलिए कैसा होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है. राइट,
जो नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विच मीन्स इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, जो पैथोजेंस के टाइप्स हैं उनके बारे में ये नहीं समझता है, राइट। तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, राइट। इनेट इम्यूनिटी इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, राइट। और चूंकि हमारे शरीर में नेचुरली इम्यून सिस्टम पाया जाता है, जो कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो उस पैथोजन को हमारी बॉडी से बाहर करने के लिए ट्राई करते हैं। इसीलिए इनेट इम्यूनिटी को ही क्या कहा जाता है, नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, अर्थात ये पैथोजन्स के जो टाइप्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। क्लियर। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एडाप्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा, राइट। सो एडाप्टिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज बिल्ट अप एज वी आर एक्सपोज टू डिसीज, राइट। जब कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में इंटर करता है तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी के द्वारा जो है उससे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के द्वारा उसको शरीर से बाहर किया जाता है, राइट। परंतु जब वह हमारे शरीर में हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने लगता है तो फिर एंटीजन के माध्यम से एंटीबॉडीज का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। तो या तो वैक्सीनेशन के माध्यम से, या फिर जब हम क्या होते हैं, या तो हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी खुद से ही क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और जैसे हमने कहा कि भाई कोरोना वायरस एंटर किया तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी, राइट। अगर फ्लू वायरस ने एंटर किया तो फ्लू के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। इसीलिए ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, राइट। और चूंकि ये आफ्टर बर्थ जो है हमारे बॉडी में डेवलप होती है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, राइट। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लिख सकते हैं, राइट, एडाप्टिव इम्यूनिटी, right. Adaptive immunity is a type of immunity that is built up as we are exposed to disease or we are get vaccinated, right. और ये किसी एक स्पेसिफिक पैथोजेंस या स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ ये जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है। Therefore adaptive immunity is also known as specific immunity, right. और इसको acquired immunity भी कहते हैं, राइट। अब जो है यहाँ पर एग्जाम में हो सकता है कि नेचुरल इम्यूनिटी को जो है 5 मार्क का जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज नेचुरल इम्यूनिटी, राइट, और व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। तो हम यहाँ पर जो इम्यूनिटी के टाइप्स हैं इनको और डिटेल में समझेंगे। हालांकि हमने अभी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी के तौर पर हम इसको समझ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है नेचुरल इम्यूनिटी को जो है समझते हैं, राइट। अब नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, देखिए नेचुरल इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि नेचुरली क्या होता है, सिंस बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, राइट। सो जैसे ही कोई अगर हम देखें तो सिंस बर्थ से ही हमारे शरीर में जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर कुछ ऑर्गन्स जो हैं उस पैथोजन को हमारे शरीर से बाहर करने के लिए वर्क करते हैं, और उस तरीके से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसी को क्या कहा जाता है, नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है, राइट। तो इट इज प्रेजेंट नेचुरली सिंस बर्थ, देयरफॉर इट इज नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी, राइट। और नेचुरल इम्यूनिटी में देयर आर वेरियर्स, राइट, और वेरियर्स की वजह से ही जो पैथोजेनिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं, राइट। और अगर हम देखें सो देयर आर 4 मेन बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स इन दिस, राइट, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा, राइट। तो हमारे शरीर में कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को हमारे शरीर में एंटर करने से रोकते हैं। तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला क्या हो जाएगा, एपिथेलियम हो जाएगा या हमारी स्किन हो जाएगी, राइट। तो सच एज एपिथेलियम प्रेजेंट ऑन द स्किन, राइट। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन पर जो एपिथेलियम होती है ये पैथोजेंस को हमारे शरीर में एंटर करने से रोकती है, राइट। इस तरीके से ये एक बैरियर या ऑब्स्टिकल के रूप में पैथोजन को हमारे शरीर में एंटर करने से रोकती है। मान लीजिए कि अगर कोई पैथोजन इस
स्किन से या एपिथेलियम को पार करके हमारे शरीर में एंटर कर गया, तो उसके बाद में जो दूसरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकल इनहिबिशन हो जाएंगे, और इसमें क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं, राइट। जैसे अगर हमारी आंखों में देखें तो आंखों में क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं, या फिर हमारी स्टमक में जो डाइजेशन के लिए क्या होता है, HCl होता है, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, राइट, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब मान लेते हैं कि कोई पैथोजन ने ये जो फिजिकल बैरियर है इसको भी पार कर लिया, राइट, फिजियोलॉजिकल जो इनहिबिशन है, राइट, जैसे HCl है, उससे भी वो उसका कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है क्या, सेल्यूलर बैरियर आता है, राइट। तो हमारी बॉडी में देयर आर सम सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज फैक्टर्स, राइट। तो जो सेल होती हैं दे फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय देम, जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उनको हमारी जो कुछ सेल होती हैं वो उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल साइकोटाइन हो जाएगा, राइट। अब मान लेते हैं कि ये जो सेल्यूलर बैरियर है इससे भी क्या हो गया, इससे भी कोई भी पैथोजन जो है पार हो गया, तो उसके बाद में क्या आता है, इनहिबिशन आता है। जैसे क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन हो जाएगा। फिर हमारी जो कुछ सेल होती हैं, स्पेशल सेल होती हैं, फिर वो इंटरफेरॉन से क्या करती हैं, अटैक करती हैं, और उसके बाद में जो भी फॉरेन पैथोजन होता है उसको हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में नष्ट कर दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस तरीके से जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो वर्क करती है। तो कुल मिलाकर नेचुरल इम्यूनिटी में कुछ नेचुरल इम्यूनिटी जो है हमारे बर्थ से ही हमारे बॉडी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये फॉरेन पैथोजेंस के लिए जो है वेरियर्स के रूप में कार्य करते हैं, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, राइट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इसके बारे में भी हमने देखा था, राइट। दिस इम्यूनिटी डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। तो लाइफ टाइम में ही यह डेवलप होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड, और इसको ही क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा जाता है, और इसको ही एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, राइट, उसके दो टाइप होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू दीज टू, फर्स्ट क्या हो जाएगा, थ्रू एक्सपोजर हो जाएगा, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, बाय वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप को समझेंगे, फिर जो है इन दो मेथड्स को समझेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, थ्रू एक्सपोजर हो जाएगा। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सपोजर, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब देखिए थ्रू एक्सपोजर में क्या होता है, देखिए जब हमारी बॉडी किसी फॉरेन पैथोजन के कांटेक्ट में आती है तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो उस पैथोजन से फाइट करता है और उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है प्रयासरत होता है, राइट। और इस तरीके से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको ही क्या कहा जाता है, राइट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो नेचुरल मेथड से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो फ्लू है, राइट, फ्लू हो जाएगा तो फ्लू का वायरस जैसे हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप हो जाती है। अब सेकेंड हो जाएगा वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों होती है, देखिए कई बार क्या होता है, कई बार पैथोजन इतनी तेजी से हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है कि हमारे ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। देखिए अगर कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी 100% जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, परंतु यदि इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा और एंटीबॉडीज जो बनती हैं
उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा, तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो भी पैथोजन होता है उस पैथोजन के अगेंस्ट ही, राइट, या उस पैथोजन का प्रयोग करके ही क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है। और वैक्सीन में अगर हम देखें तो वैक्सीन में दरअसल वही इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है, जैसे कोरोना वायरस है तो जो इनएक्टिव कोरोना वायरस होता है उसका प्रयोग करके ही कोविड वैक्सीन बनाई जाती है और उसको शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, राइट। जैसे ही वैक्सीन हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर, राइट, उस इनएक्टिव पैथोजन के खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, राइट। और भविष्य में जब कभी कोरोना का वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा तो चूंकि हमारे बॉडी में पहले से ही क्या होती है, एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, तो इन दिस सिचुएशन में इन्फेक्शन तेजी से नहीं फैल पाएगा और एंटीबॉडीज जो है स्पीड से बनेंगी, अर्थात वो जो पैथोजन है वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरीके से, इन दो तरीके से जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो है अचीव किया जा सकता है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज जो बनती हैं उनका लाइफ स्पान भी क्या होता है, जो है लाइफ स्पान भी होता है, राइट। इसीलिए क्या होता है कि आफ्टर 6 मंथ्स और 4 मंथ्स, राइट, यदि हमें अगेन जो है प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर इसके लिए क्या होता है, बूस्टर या जो रिपीट डोज होता है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कोविड के 2 डोजेस जो है वो अवेलेबल कराए गए थे, राइट, परंतु जैसे ही जो 3rd वेव या 4th वेव आ रही थी तो उसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट जो है बूस्टर डोज को भी मार्केट में अवेलेबल करा रही है, राइट। चलिए, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके हम यहाँ पर 2 टाइप को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी, राइट। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है कि जब कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, राइट। और एंटीबॉडीज बनाता है तो उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको ही क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, राइट। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसको हम 2 तरीके से डेवलप कर सकते हैं, राइट। वो एक तो किससे हो सकती है, यहाँ पर थ्रू एक्सपोजर से हो सकती है। जैसे आप किसी भी डिसीज के कांटेक्ट में आएंगे या कोई भी पैथोजन आपके शरीर में एंटर करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम खुद से ही क्या होगा, एंटीबॉडीज बना लेगा, राइट। और एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो जनरेट हो जाएगी। या फिर वैक्सीनेशन के माध्यम से, राइट, थ्रू वैक्सीनेशन जो है एक्टिव इम्यूनिटी जो है कैन बी अचीव्ड, राइट। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो चाइल्डहुड में ही जो पोलियो वैक्सीन है, टीबी वैक्सीन है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी या कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं, राइट, ये वैक्सीन्स जो हैं बच्चों को चाइल्डहुड में ही क्या होती हैं, अवेलेबल करा दी जाती हैं ताकि बच्चे जब भी कभी इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिसीजेज जो हैं वो नेगेटिव इफेक्ट जो है बच्चे को नहीं कर पाते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो क्या है कि अगर पैथोजन हमारे शरीर के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा शरीर खुद क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि इन्फेक्शन की जो दर है, राइट, या जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है वो अगर कॉपी स्लो बनाएगा तो एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बन जाएंगी, तो उससे हमारे ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे और डेथ नहीं होगी, राइट। तो एक तो कंडीशन क्या है कि इन्फेक्शन की जो इन्फेक्शन रेट है वो कम होनी चाहिए, राइट, या फिर वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। परंतु अगर हम देखें कि ना तो जो इन्फेक्शन रेट है वो स्लो है और ना ही क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, इन दिस केस में क्या होता है कि इन दिस केस में कोई भी जो इम्यून सब्जेक्ट होता है, इम्यून सब्जेक्ट की एंटीबॉडीज को निकालकर जो अनइम्यूनाइज्ड पर्सन होता है उसकी बॉडी में क्या किया जाता है, डाला जाता है। मान लीजिए हमने कहा कि 2 व्यक्ति हैं, ए और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए इज
एक्सपोज्ड टू कोविड-19, ये कोविड-19 से क्या है, कोविड-19 से क्या इन्फेक्टेड हो चुका है और ये रिकवर भी हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इसके शरीर में क्या होंगी, कोविड-19 के लिए एंटीबॉडीज होंगी। अब जैसे मैंने कहा कि बी कोविड-19 से क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया है और इन्फेक्शन जो है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इस केसेस में कोविड-19 का जो है वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल है नहीं है, तो इस केसेस में क्या करेंगे कि चूंकि ए के बॉडी में पहले से ही क्या है, एंटीबॉडीज हैं, तो इन्हीं एंटीबॉडीज को अगर हम इंजेक्ट कर दें वी की बॉडी में तो उससे क्या होगा, पेसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। तो पेसिव इम्यूनिटी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज टू एन अनइम्यूनाइज्ड पर्सन फ्रॉम अ immune subject to provide temporary protection against microbial agent और क्या हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा, राइट या जिसको ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी के नाम से भी कहते हैं, राइट। तो कुछ अगर आप देखें तो कुछ कहीं कहीं पर जो लैब्स होती हैं तो लैब्स में भी इस तरीके से जो है जो दीज डिसीज फाइटिंग सब्सटेंसेस आर केप्ट इन एडवांस, तो कुछ लैब्स में ये जो डिसीज फाइटिंग सब्सटेंसेस होते हैं इनको लैब में एडवांस रूप में रखा जाता है, राइट। तो इस तरीके से आई होप हमने बहुत ही अच्छे से इम्यूनिटी को, राइट, हमने इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को, फिर उसके बाद में जो इनेट इम्यूनिटी है, एडाप्टिव इम्यूनिटी है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। उसके बाद में अगर 5 मार्कर में नेचुरल इम्यूनिटी पूछा जाए, व्हाट इज नेचुरल इम्यूनिटी, राइट, हाउ डज इट वर्क, तो ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आफ्टर दैट व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे अचीव की जाती है, तो उसके 2 तरीके हैं, थ्रू एक्सपोजर और बाय वैक्सीनेशन, इसको भी समझ लिया है। फिर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन या एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इसको भी हम समझ चुके हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी हो जाएगा। तो इम्यूनोलॉजी की फील्ड में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस को हम पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए अगर हम देखें, सो इन अर्लियर टाइम कुछ डिसीजेज ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रही थी। जैसे अगर हम देखें, एक हो जाएगी स्मॉल पॉक्स हो जाएगी, राइट, स्मॉल पॉक्स हो जाएगी, उसके बाद में पोलियो हो जाएगा, राइट, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, राइट, HIV हो जाएगा, राइट, या फिर जैसे हम बात करते हैं कोविड हो जाएगा। तो शुरुआत से ही कुछ डिसीजेज ऐसी थी जिन्होंने मिलियंस में या बिलियंस में लोगों को इन्फेक्ट किया है और इससे मिलियंस एवं बिलियंस लोगों की जान भी चली गई है। परंतु जो इम्यूनोलॉजी है, इस फील्ड में कई इन्वेंशंस हुए हैं, स्पेशली कुछ ड्रग्स का, कुछ प्रोटीन्स का, या हम कहें कि स्पेशली वैक्सीन्स का मैन्युफैक्चरिंग या वैक्सीन्स का इन्वेंशन हुआ है, जिसकी वजह से ही जो डेडली डिसीजेज हैं उनको हमने कंट्रोल किया है, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, राइट, स्मॉल पॉक्स हो, पोलियो हो, राइट, इस तरीके की जो डेडली डिसीजेज हैं इनको हम टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस के माध्यम से ही कंट्रोल कर पाए, राइट। तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि बिकॉज इन अर्लियर टाइम देयर वर मैनी डेडली इन्फेक्टियस डिसीजेस, फॉर एन एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन्स, right, or drugs in the market, we were able to control these diseases, right। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि जो the field of immunology is very wide है, ये क्या है, बहुत ही विस्तृत है, and using immunology, right, many achievements have been earned in each field, right, due to the use of immunology, human have been protected, creating medicines and vaccines to avoid deadly diseases, right। तो इम्यूनोलॉजी में वैक्सीन्स एवं मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग के कारण ही जो डेडली डिसीजेज हैं उनसे ह्यूमन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया है। इसके साथ ही ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, द अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, राइट, अगर हार्मोन्स एवं एंजाइम्स का प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में क्या होंगे, केमिकल्स होंगे, राइट। अदर
जो इम्यून एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होंगे, राइट, और यदि गुड क्वालिटी क्या होंगी, वैक्सीन्स होंगी, तो इनकी वजह से भी हम वेरी लो कॉस्ट में जो है, लो कॉस्ट में डेडली डिसीजेस से जो है निपट सकते हैं, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, राइट, एट अ वेरी लो कॉस्ट वी आर एबल टू कंट्रोल और वी आर एबल टू इराडिकेट डेडली डिसीजेस, और ये प्रेजेंट में क्या हो चुका है, पॉसिबल भी हो पाया है। साथ ही साथ द साउडेट वैक्सीन स्ट्रेन ऑफ रोटरा वायरस, राइट, डायरिया हैज बीन पेटेंटेड। तो रोटरा वायरस और डायरिया की जो साउडेट वैक्सीन है, राइट, साइडेड वैक्सीन है, ये पेटेंटेड हो चुकी है। साथ ही साथ इसका प्रोटोटाइप भी जो है डेवलप हो चुका है, और इसकी वजह से जो रोटरा वायरस और जो डायरिया के केसेस हैं और भी इनको इफेक्टिव तरीके से इनसे डील किया जा सकता है। साथ ही साथ, राइट, सिग्निफिकेंट जो प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर, क्या हो जाएगा, जैसे हेपेटाइटिस वी की जो वैक्सीन अवेलेबल है, कोलेरा हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन जो है अवेलेबल है, रोटरा वायरस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, राइट, पोलियो हो जाएगा, राइट, और इनको अंडर इंडो यूएस वैक्सीन जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, अंडर इंडो यूएस वैक्सीन जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत ही और इसके प्रोग्राम के तहत ये जो वैक्सीन्स हैं ये अवेलेबल हैं, और इन वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ही बच्चों में जो मीजल्स है, कुछ मीजल्स है, या फिर हम ये कहें कि एडल्ट्स में जो रोटरा वायरस है या फिर टाइफाइड के जो केसेस हैं, इनको भी डील किया जा सकता है, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एड्स की, राइट, सो व्हेन वी डिडंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग HIV एड्स, तो उस जमाने में भी मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट होता था उनको वर्क एरिया से या फिर फैमिली से एक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, क्योंकि लोगों को फियर था कि HIV जो है उनमें उनको इन्फेक्ट ना कर दे, राइट। परंतु अगर हम देखें तो हमारे पास में मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से ही जो एड्स है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। वी हैव मॉडर्न इक्विपमेंट्स और वी हैव लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से ही जो HIV के केसेस हैं उनको कंट्रोल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो एलिसा सिस्टम है, राइट, एलिसा सिस्टम यूजिंग सिंथेटिक पेप्टिसाइड्स, राइट, पेप्टाइड्स, और जिसमें सिमेरिक मोनोक्लोनल रिजेंट्स एंड वेस्टर्नी इम्यूनोलॉन्स एरिड्स हैव बीन डेवलप्ड, और इनको ट्रांसफर कर दिया गया इंडस्ट्रीज को। तो इस तरीके से जो एलिसा सिस्टम है उससे और बेहतर तरीके से जो एड्स है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इम्यूनोलॉजी की फील्ड में वर्तमान समय में ऐसी लैब्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हो चुके हैं जिनसे कई डेडली डिसीजेस को जो है क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल एंड मोलिक्यूलर टेस्टिंग सेंटर्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, राइट, किसका डिटेक्शन, तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, फिलियारिसिस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, राइट, लिग्मानियासिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, रेबीज, राइट, फिर सेरेबल हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, एस्परजेसिस हो जाएगा। तो इन डेडली डिसीजेस को डिटेक्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग एंड केमिकल जो सेंटर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, जिनसे इन डिसीजेस को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट किया जा सकता है। हम यहाँ पर एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो सेंटर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। फिर वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली है। इन सेंटर्स में ये जो डेडली डिसीजेज हैं इनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, और जो मेडिसिन है या वैक्सीन है उसके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साथ ही अगर हम देखें तो PCR बेस्ड सिस्टम हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए जो PCR बेस्ड सिस्टम है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ एंड जलमा आगरा के द्वारा जो है डेवलप किया जा चुका है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो द मार्केटिंग किट developed by Central Drug Research Center Lucknow for the diagnosis of, right, leishmaniasis has been entrusted to the Massey Span Diagnostics, right। तो जो Massey Span Diagnostic है,
राइट, उसको लेशमियानिसिस के लिए जो है इंटरेस्टेड कर दिया गया है, किसके द्वारा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ के द्वारा। साथ ही साथ जो एंटी आईजीएम एलिसा किट है, एंटी आईजीएम एलिसा किट फॉर हेपेटाइटिस ए एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर राइट एस्परजीएसिस, राइट एस्परजेफेसिस हैव बीन डेवलप्ड एट कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी जो कि पुणे में है, और सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सेंटर न्यू दिल्ली में। तो सेंटर फॉर बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे, राइट, इन दोनों की मदद से ही एक तो एंटी आईजीएम एलिसा किट जो कि हेपेटाइटिस ए के लिए है, और एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर एस्परजेफेसिस है, वो डेवलप किया जा चुका है, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इम्यूनाइजेशन प्रोडक्ट्स हैज सच एज एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, राइट, मैन्युफैक्चर्ड थ्रू लेटेस्ट टेक्निक्स। तो लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स हैं या वैक्सीन्स हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। साथ ही साथ इम्यूनोलॉजी, राइट, इम्यूनोलॉजी में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं, उन डेवलपमेंट की वजह से ही जो है हम एडवांस जो मेडिसिन है उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट, सच एज मैन्युफैक्चर ऑफ एडवांस्ड एंड इनएक्सपेंसिव ड्रग्स, राइट। और क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएगा, या मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रोथ एंजाइम्स हो जाएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ड्रग्स हो जाएगा, या वैक्सीन्स हो जाएगा टू प्रिवेंट इन्फेक्टियस डिसीजेस। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंसर वैक्सीन्स हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड प्रोटीन्स व डीएनए टेक्नोलॉजी हो जाएगा, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये सभी चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाई हैं। साथ ही साथ जो कोलेरा वैक्सीन है, कोलेरा वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निक्स, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कई डेडली जो डिसीजेज हैं उनके लिए ड्रग्स हैं, एंजाइम्स हैं या वैक्सीन्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं, राइट। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो स्मॉल पॉक्स है या पोलियो है या फिर फ्लू जैसी डेडली जो डिसीजेज हैं उनको वैक्सीन्स के माध्यम से और मेडिसिन के माध्यम से जो है इरेडिकेट किया जा चुका है या कंट्रोल किया जा चुका है। एंड दिस हैज़ बीन possible because of the latest technological inventions in the field of immunology, right। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि certainly at present there are chief reasonable and accurate medicines, drugs and vaccines are available in the market for the treatment of deadly diseases। but अगर हम देखें तो अभी भी कई ऐसी डिसीजेज हैं जिनके कंट्रोल के लिए या जिनके प्रिवेंशन के लिए जो है इम्यूनोलॉजी में अभी भी और इन्वेंशंस होने बाकी हैं। जैसे अगर हम बात करें कोविड-19 की, यस वी हैव कोविड-19 वैक्सीन्स बट द पर्सन हु हैज टेकन कोविड-19 डोजेज, राइट, वह भी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन वन हैंड वी हैव डिफरेंट वैक्सीन्स, डिफरेंट ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिसीजेस एंड इन अदर हैंड कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जिनको अभी भी कंट्रोल नहीं किया जा चुका है या उस फील्ड में अभी भी और भी क्या है रिसर्च किया जाना बाकी है, राइट। नाउ वी विल स्टडी वैक्सीन। सी ये टॉपिक भी, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 दिस टॉपिक हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। सो एट फर्स्ट वी विल स्टडी वैक्सीन। अब आप वैक्सीन के बारे में समझते ही होंगे तो हम यहाँ पर इसकी सबसे पहले जो है डेफिनेशन देखते हैं, राइट। सो द मेडिसिन विच इज गिवन इन द ड्रॉप, इंजेक्शन और इन एनी अदर फॉर्म। सो द मेडिसिन विच इज गिवन इन ड्रॉप, इंजेक्शन और इन एनी अदर फॉर्म to develop immunity against a particular pathogen or against a particular disease is called as vaccine, right। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन कहा जाता है, right। so the medicine which is given, right, to develop immunity against a infectious disease is known as vaccine। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन कहा जाता है। और प्रेजेंट में अगर हमें मेडिसिन की फील्ड में अगर हमको मेडिसिन की फील्ड में
अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो उसका मोस्ट इफेक्टिव जो तरीका है वो क्या होता है, वैक्सीनेशन ही होता है। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम डेडली इन्फेक्टियस डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ जो वैक्सीन है, राइट, वैक्सीन वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वैक्सीन की जो है प्रोसीजर समझा देता हूँ, राइट, नॉर्मल वर्ड्स में, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, राइट। देखिए वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन जैसे हमने कहा कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो वैक्सीन है वो किसी स्पेसिफिक पैथोजन या किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट में बनाई जाती है, राइट। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कोविड-19, राइट, या फिर हमने कह दिया यहाँ पर SARS-CoV-2, राइट। अब हमें पता है कि जो SARS-CoV है, राइट, SARS-CoV-2 है, जो ये वायरस जैसी बॉडी में एंटर करेगा तो ये अपनी कॉपी बहुत ही स्पीड से बनाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा और इतनी तेज़ी से फैलेगा कि हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगेंगे और इन केसेस में हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इस स्थिति को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि हम जो SARS-CoV-2 जो वायरस है, राइट, इसका एक इनएक्टिव क्या ले सकते हैं हम, या तो हम प्रोटीन की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या जो इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको हम बॉडी में क्या करते हैं, इनएक्टिव जो फॉर्म होता है उसको वैक्सीन के रूप में ही बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे जो वायरस है SARS-CoV-2 जैसे ये हमारी बॉडी में वैक्सीन के रूप में जाएगा, हमारी बॉडी जो है, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और एंटीबॉडीज जो है वो बनना क्या हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। अर्थात हमारे शरीर में पहले से ही SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जो है अवेलेबल होंगी। इसीलिए इन फ्यूचर में जब कभी भी हम SARS-CoV-2 के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी बॉडी बहुत ही स्पीड में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर लेगी, और जैसे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो इस जो वायरस है इससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे और जो पेशेंट है उसकी लाइफ जो है बच जाएगी। साथ ही साथ हो सकता है कि उसको नॉर्मल जो है थोड़ी बहुत फीवर वगैरह आए और वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, वैक्सीन्स को जो है वैक्सीन के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो वैक्सीन्स जो है वो मोस्ट इफेक्टिव क्या मानी जाती है, मेथड मानी जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिसीजेस, राइट। और इसके साथ ही इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो पैथोजन है जो कि हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, राइट, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। साथ ही साथ ये एक लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, मेजर भी है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो जब कोरोना से आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो हो सकता है आपको ट्रीटमेंट में 4 लाख या 5 लाख रुपए खर्च करना पड़े, परंतु वहीं पर आप जो है मैक्सिमम 500 की जो है वैक्सीन्स ले सकते हैं और उस डिसीज के अगेंस्ट अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। दिस मे बी आस्क्ड एज 11 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन 11 मार्कर में पूछा जाए तो हम यहाँ पर वैक्सीन को जो है डिफाइन कर सकते हैं, राइट। द मेडिसिन विच इज गिवन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज और पर्टिकुलर पैथोजन इज नोन एज वैक्सीन, राइट। और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है, राइट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, आल्सो इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स, राइट। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रक्रिया है एक लंबी प्रक्रिया है, राइट। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, राइट, इंक्लूडिंग रिसर्च, राइट। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो रिसर्च से शुरू होती है, राइट, एंड एक्सटेंडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक जाकर जो है प्रक्रिया चलती रहती है। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी क्या हो जाएगा, स्टेज हो जाएगा, राइट। तो एक्सप्लोरेटरी जो स्टेज है इसको
रिसर्च या एक्सप्लोरेशन स्टेज भी कहा जाता है। तो जो फर्स्ट जो होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, इसमें रिसर्च पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है या एक्सप्लोरेशन किया जाता है। जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक डिसीज तेजी से जब इन्फेक्शन तेजी से उस डिसीज के केस रजिस्टर होते हैं, तो सबसे पहले ये रिसर्च की जाती है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है, और उसके लिए जो आर्टिफिशियल एंटीजन है उसको डिसाइड किया जाता है, या फिर नेचुरल या आर्टिफिशियल जो एंटीजन को डिसाइड किया जाता है। राइट, कुल मिलाकर जब हमने कहा कि कोई भी पेंडेमिक है या एंडेमिक है, तो वह किस वायरस की वजह से, राइट, हो सकता है कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी पैथोजन हो सकता है। तो सबसे पहले किस वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से या किस पैथोजन की वजह से वह डिसीज जो है फैल रही है या उसका ट्रांसमिशन जो है हो रहा है, उस वायरस को सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है आइदर नेचुरली, और उसका जो आर्टिफिशियल जो एंटीजन है वो यहां पर क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो आर्टिफिशियल एंटीजन इज प्रिपेयर्ड, राइट। फिर वंस द जो एंटीजन है, जैसे ही एंटीजन क्या हो जाता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है। एंटीजन क्या होता है, देखिए एंटीजन ही एंटीबॉडीज के मैन्युफैक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ही एंटीजन डिसाइड हो जाता है, एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड, राइट। फिर दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड कलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, राइट। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसकी मदद से जो है एंटीजन क्या होता है, बनाया जाता है। तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, इसमें रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के माध्यम से एंटीजन जो है डिसाइड किया जाता है, और फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की मदद से जो है एंटीजन को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। अब जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, अ प्रोटीन दैट इज मेड बाय डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की मदद से जो है एंटीजन जो है तैयार किया जाता है। फिर सेकेंड स्टेज शुरू होती है प्री क्लिनिकल, राइट। प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो एंटीजन मैन्युफैक्चर, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से जो एंटीजन तैयार हो जाता है, उसको प्री क्लिनिकल स्टेज में क्या किया जाता है, प्री क्लिनिकल स्टेज में वो उसको सेल उसको किसी भी जो है बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से इम्यून सिस्टम कार्य कर रहा है, राइट। तो जो प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, इट यूजेस अ सेल स्ट्रक्चर सिस्टम एंड इज टेस्टेड ऑन एनिमल, देयरबाय इंश्योरिंग एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। तो जो एंटीजन जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से, उसको एनिमल पर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो प्री क्लिनिकल स्टेज में सेल स्ट्रक्चर पर उसका टेस्ट किया जाता है, या एनिमल पर जो है उसका टेस्ट किया जाता है। जैसे रैट्स है, मंकीज है, या क्या हो जाएगा, रेबिट्स हो जाएगा। अब इसको अगर डायरेक्ट हम ह्यूमन पर टेस्ट करेंगे तो हो सकता है ह्यूमन डेथ पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन डेथ, इसलिए इसको एनिमल्स पर, जैसे रैट्स है, मंकीज है या रेबिट्स है, उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और फिर स्टडी की जाती है कि जो एंटीजन है उसके या उस वैक्सीन का इफेक्ट क्या है, उस वैक्सीन के प्रवेश करने से, राइट, उस वैक्सीन के प्रवेश करने से एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, राइट, कितनी मात्रा में बन रही हैं, और वह उस बीमारी से फाइट करने में कितनी कारगर हैं, इसकी पूरी की पूरी जो है स्टडी की जाती है, राइट। और उसके बाद में जो है थर्ड स्टेज शुरू होती है। फिर थर्ड स्टेज का नाम क्या है, क्लिनिकल ट्रायल हो जाएगा। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो थर्ड स्टेज है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, एंड द क्लिनिकल ट्रायल स्टेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड क्रिटिकल इन वैक्सीन डेवलपमेंट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग द इम्यूनिटी जनरेटेड इन एनिमल्स और प्लांट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी थ्रू सेल स्ट्रक्चर सिस्टम। तो सेल स्ट्रक्चर सिस्टम के तहत अब ह्यूमन बॉडी पर उसकी क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। और जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वह भी जो है 3 फेजेज में होते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, फेज फर्स्ट,
तो क्लिनिकल ट्रायल में फेज फर्स्ट में जो वैक्सीन है वो 20 to 80 पीपल को जो है दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर हमने इकट्ठे लोगों को दे दिया तो हो सकता है उस वैक्सीन के नेगेटिव इम्पैक्ट हो, किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले जो वैक्सीन है वो 20 to 80 पीपल को दी जाती है, राइट, और उनको सुपरविजन या स्पेशल केयर में रखा जाता है। साथ ही साथ उस वैक्सीन के से एंटीबॉडीज कितनी बन रही है, कितने दिन में बन रही है, उसकी एफिकेसी कितनी है, ये पूरा डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, राइट। फिर जो सेकेंड फेज होता है इसमें जो नंबर ऑफ द पीपल है उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, राइट। फेज फर्स्ट में 20 to 80 पीपल को जो है वैक्सीन दी जाती है, तो फेज सेकेंड में इसको जो है 100 से लेकर, राइट, जो 100 पीपल तक जो है डिसाइड किया जाता है। साथ ही साथ चेंजेस आर मेड इन द डोजेस ऑफ द वैक्सीन। तो एक तो पीपल जो जितने भी जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और जो डोजेस हैं वो भी चेंज किए जाते हैं, राइट। फिर उससे जो है एंटीबॉडीज कितनी बन रही हैं, राइट, वो कितनी इफेक्टिव हैं, उसकी एफिकेसी, राइट, ये सबका क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ये सबको एनालाइज किया जाता है, राइट। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेज थर्ड में हो जाएगा। अब देखो फेज थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर तो अगर हम देखें तो 20 से 80 पीपल रहते हैं जिनको सुपरविजन या स्पेशल केयर में रखा जाता है। फिर फेज सेकेंड में जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो 100 तक कर दिए जाते हैं और डोजेस को भी क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और फिर राइट, और जो सेकेंड होती है उसमें क्या किया जाता है, एफर्ट्स आर मेड टू इन्वॉल्व पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, राइट, इन दिस स्टेज। तो इसमें ऑल एज के जो ग्रुप हैं उनको फेज सेकेंड में सम्मिलित किया जाता है। जब यहाँ से भी जो रिजल्ट्स हैं या जो एनालाइज जो रिजल्ट है वो अगर बेटर रहता है तो फिर इसको क्या किया जाता है, 1000 पीपल को ये जो है वैक्सीन दी जाती है। इन दिस स्टेज वैक्सीन इज टेस्टेड ऑन ग्रुप ऑफ सेवरल 1000 पीपल, राइट। तो थर्ड स्टेज में हर जेंडर के लोगों को, राइट, जो सभी एज ग्रुप के हैं और सभी जेंडर के लोगों को और हजारों की संख्या में ये वैक्सीन दी जाती है, राइट। और साथ ही साथ कम से कम इसमें 8 से 9 महीने तक, राइट, एट दिस स्टेज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर स्टडीड, कि किसी भी वैक्सीन्स के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। जब ये पूरा का पूरा अध्ययन हो जाता है तो उसके बाद में उसको रेगुलेटरी रिव्यू के लिए जो है फॉरवर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेज हो चुकी हैं, राइट। सबसे पहला एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल, देन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड। उसके बाद में क्या आता है, रेगुलेटरी रिव्यू एंड क्या हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, राइट। एज यू नो कि विदाउट द परमिशन ऑफ DGCI जो है वैक्सीन्स को मार्केट में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। तो जैसे ही फेज 3 की रिपोर्ट आती है, फेज 3 की रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है, राइट। एट दिस स्टेज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, all the stages of vaccine trial are reviewed by the Drug Controller General of India, राइट। जिस देश में वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना है वहाँ की जो भी बॉडी है, जैसे हमारे देश में क्या हो जाएगी, DGCI हो जाएगी। तो जो ऑल द स्टेजेस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सबमिट की जाती हैं, फिर DGCI उनका रिव्यू करता है और आफ्टर दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट वैक्सीन अप्रूव्ड, उसका अप्रूवल मिल जाता है। जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बावजूद भी एक स्टेज बचती है जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, राइट। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैक्सीन जो है स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द वैक्सीन, क्वालिटी टेस्टिंग इज डन फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, थ्रू साइंटिस्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ताकि उस वैक्सीन की जो क्वालिटी है वो वही बनी रहे। इस तरीके से जो वैक्सीन है, राइट, वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर होती है, इसीलिए वैक्सीन बनने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। क्योंकि उसकी अगर हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, चलिए मान लेते हैं कि जो एक्सप्लोरेटरी स्टेज है इसमें 20 डेज लगे, राइट। तो जो इसकी प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज है इसमें समय लगता है और सबसे ज़्यादा समय लगता है 1 साल तक लगभग क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि
क्लिनिकल ट्रायल में ही हम जो है वैक्सीन के जो लॉन्ग टर्म, राइट, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं उसकी स्टडी करते हैं। इसीलिए वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर होने में लगभग जो है ऑन एवरेज 1.5 ईयर या 2 ईयर का जो है समय जो है सूटेबल माना जाता है, राइट। एट लास्ट हम यहाँ पर समझेंगे इन्फेक्टियस डिसीजेस और वेरियस क्या हो जाएंगे, वैक्सीन्स हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल इन द मार्केट, या चूंकि हमको यहाँ पर टेक्निकल इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ना था, तो हो सकता है कि आपसे पूछे कि व्हाट आर द अवेलेबल वैक्सीन्स इन द मार्केट। तो इसीलिए हम जो है डिफरेंट वैक्सीन्स हैं वो किस डिसीज़ के लिए हैं, किस तरीके से दी जाती हैं, ये पूरा का पूरा चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो इनफैक्ट जो है इन्फेक्टियस डिसीजेज हैं और उनके लिए जो वैक्सीन है और यहाँ पर जो है उसकी मेथड दी गई है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो डिसीज़ का नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है उसको क्या कहा जाता है, VCG कहा जाता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, बैसिलस कॉमेट ग्वेरिन हो जाएगा। इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। फिर हो जाएगा पोलियोमाइलाइटिस, राइट, पोलियो वैक्सीन, राइट। तो डिसीज का नाम क्या हो जाएगा, पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो। उसके लिए OPV वैक्सीन दी जाती है, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट, ओरल पोलियो वैक्सीन, या जिसको पोलियो ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो ये बाय माउथ दी जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर हो जाएगा यहाँ पर डिप्थीरिया, बूफिंग कफ एंड क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा। तो इन तीनों डिसीजेस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, वूफिंग कफ के लिए और टिटनेस के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है, जिसका नाम क्या है, DPT। तो DPT इज अ ट्रिपल वैक्सीन। क्या है ये, एक ट्रिपल वैक्सीन है जो कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस तीनों के लिए जो है DPT वैक्सीन दी जाती है, राइट। इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। फिर हो जाएगा मीजल्स के लिए, मीजल्स वैक्सीन हो जाएगी, इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है। फिर टिटनेस के लिए टिटनेस टॉक्साइड, ये जिसको क्या कहा जाता है, TD वैक्सीन कहा जाता है, ये भी इंजेक्शन से दी जाती है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा जॉन्डिस वैक्सीन, राइट, या जॉन्डिस को हेपेटाइटिस कहा जाता है, तो हेपेटाइटिस V वैक्सीन और हेपेटाइटिस A वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस B वैक्सीन और हेपेटाइटिस A वैक्सीन जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं और ये भी इंजेक्शन से दी जाती है। देन रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, तो रेबीज के लिए एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, जिसको ARV कहा जाता है, दी जाती है बाय इंजेक्शन। देन टाइफाइड, जिसको क्या कहा जाता है, मोती झरा कहा जाता है, या फीवर ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो टाइफाइड के लिए एंटी टाइफाइड वैक्सीन है, राइट, या ऑरल है, जो कि क्या है, टाइफाइड वैक्सीन है। तो एंटी टाइफाइड वैक्सीन है, इसको भी इंजेक्शंस के द्वारा दिया जाता है और इसको माउथ के द्वारा भी दिया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, मीजल्स, मम्स एंड क्या हो जाएगा, रोवेला हो जाएगा, राइट। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट वैक्सीन है, जिसको क्या कहा जाता है, MMR, राइट। एक ट्रिपलेट वैक्सीन का नाम है यहाँ पर DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, और दूसरी क्या हो जाएगी, MMR, राइट, मीजल्स, मम्स एंड क्या हो जाएगा, रोवेला। इसको भी जो है MMR या ट्रिपलेट वैक्सीन जो है दी जाती है बाय इंजेक्शन। देन हो जाएगा चिकन पॉक्स, उसके लिए चिकन पॉक्स वैक्सीन हो जाएगी, बाय इंजेक्शन दी जाती है। येलो फीवर के लिए येलो फीवर वैक्सीन दी जाती है बाय इंजेक्शन के द्वारा। मेनिनजाइटिस, जिसको ब्रेन फीवर कहते हैं, इसके लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन होती है, इसको भी इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। और कोलरा के लिए कोलरा जो है वैक्सीन होती है, जिसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, राइट। So in this way we have studied in depth technological inventions in the field of immunology, right. So in next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.